کی پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی کسی صورت قبول نہیں۔ پانی پاکستان کی لائف لائن ہے، بھارت کبھی پاکستان کا پانی نہیں روک پائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سہ افریقی اجلاس سے خطاب، کہا آذربائیجان نے لڑ کر آزادی حاصل کر کے دنیا کی قوموں میں اپنا مقام بنایا۔ آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان نے مارکہ حق میں عظیم کامیابی حاصل کی۔ ترکیہ کے ساتھ پاکستان نے بھی آذربائیجان کی جنگ میں اخلاقی اور سفارتی حمایت کی۔ ہم یک غالب 2 جان سے یک غالب 3 جان بن گئے ہیں۔ پاکستان کا ترکیہ نے آزادی کی جنگ میں آذربائیجان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا کہنا تھا کہ 107 سال پہلے آذربائیجان پہلا آزاد مسلم ملک بنا جس پر 7 سال بعد روس نے قبضہ کیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آذربائیجان آزاد ہوا، مگر آرمینیا کی جارحیت جاری رہی۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے مختلف علاقوں میں ہمارے لوگوں کی نسل کشی کی۔ بھارت نے حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی مکمل حمایت کرنے والے ترکیہ اور آذربائیجان کے صدور کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان بولے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہونا ترکیہ کے لیے باعث اطمینان ہے۔ امید ہے اعلان کردہ سیز فائر کو مستقل امن میں تبدیل کیا جائے گا۔ یوم آزادی پر آذربائیجان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترکیہ، پاکستان اور آذربائیجان 3 ملک ایک قوم ہیں۔ عازری صدر نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ لاچین میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان سہ افریقی اجلاس صدر الہام علیوف کا کہنا تھا، پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان مشترکہ تاریخ اور ثقافت میں بندھے ہوئے ہیں۔ تینوں ممالک مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی ہمارے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ مودی کی تقریر اشتعال انگیز، غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانے کا بیان عالمی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا انتہا پسند مودی کے دھمکی آمیز بیانات پر شدید رد عمل، کہا مودی سرکار عالمی عزائم سے پہلے اپنے ضمیر کا محاسبہ کرے۔ بھارتی حکومت نفرت انگیزی کو فروغ دے رہی ہے۔ جذبات بھڑکانے والی سیاست صرف وقتی تالیاں سمیٹ سکتی ہے۔ بھارت کے نوجوان ایسی سیاست کو رد کریں۔ بزدل دشمن کا غرور خاک میں ملانے کا دن، پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے 27 سال مکمل۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور ملکی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ علماء نے پاکستان کی سلامتی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ شہر شہر تقاریب، سیمینار، ریلیاں اور دعائیہ اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے آذربائیجان کے ساتھ دفاعی روابط مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
सदर मुमलिकत की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। एटमी ताकत का उसूल क़ुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की जामन है। पाकिस्तान जंग का ख्वाह नहीं, पुरअमन, बकाए बाहमी और आलमी कवानीन के एहतराम के उसूलों पर कारबंद है। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने तस्वीराती तहम्मुल और अमन के अज़्म का मुज़ाहरा किया। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक मुआशी क़ुव्वत बनाकर दुनिया में हक़ीक़ी मकाम दिलाएंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। मुल्क को कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को सलाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ और सर्विसेज चीफ की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान एक जोहरी ताकत के तौर पर उभरा। तारीखी कामयाबी कौम के अज़्म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जुस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी अमानत है जो अवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ISPR के मुताबिक ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 28 मई हर पाकिस्तानी के लिए बाइसे इफ्तिखार और काबिल फ़ख्र दिन है। आलमी दबाव के बावजूद धमाके करना जुर्रत की आला मिसाल है। साइंसदानों, अफवाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत ने नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। यौम तकबीर कौम के अज़्म, इस्तक़लाल और दिफ़ाए वतन के नाकाबिल तस्खीर जज्बे का मज़हर है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुर्रतमंदाना फैसला किया। इस तारीखी सफ़र का आगाज़ बानी एटमी प्रोग्राम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। यौम तकबीर हमें याद दिलाता है कि जब कौम मुत्तहिद हो तो वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तबाह करने के वास्ते पैगाम के तौर पर दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुका है। अल्लाह की मदद से पाकिस्तानी अफवाज ने मार्के बुनियादुल मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दिफाई वतन की नई तारीख रकम कर दी। दिफाई माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फतह रॉकेट सिस्टम जैसे जदीद हथियार पाकिस्तान के दिफा के ज़ामिन है और दुश्मन के दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर पाकिस्तान के नौजवानों ने जदीद मौसीकी स्टाइल में अंग्रेजी जुबान में नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि हम न सिर्फ तैयार हैं बल्कि मुकम्मल बहादुरी रखते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि जोहरी खित्ते में तबल जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना फेल है। भारत तोसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार कर रहा है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह पर में रुकावट है। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंदी हुई। पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबजूल हुई। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर इसराइली इश्तिहाल अंगेजी की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मस्जिदुल अक्सा की हुर्मत पामाल करना नाकाबिल कबूल है। काबिज इसराइल फोर्सेज और गैर कानूनी आबादकारों की कार्रवाइयाँ मुस्तरद करते हैं। इसराइल मजीद इश्तिहाल अंगेजियों से बाज रहे। इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक में खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। नरेंद्र मोदी एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म है। मोदी अब सिर्फ धमकियां दे सकता है।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता उल्लाह तारर ने कहा, मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। वज़ीर आज़म के दोस्त मुल्कों के दौरों से अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया देख रही है। भारत का माहौल दुश्मन और आलमी मामलात में गैर जिम्मेदाराना रवैया एक बार फिर दुनिया के सामने जाहिर हो गया। बहीरा अरब में 640 कंटेनर से लदा हुआ एक खतरनाक माल बरदार जहाज डूब गया, जिनमें 13 इंतहाई मुहलिक जहरीले केमिकल से भरे कंटेनर्स भी शामिल थे। इस होलनाक हादसे ने भारतीय हुकूमत और बहरिया की पेशा वाराना नाअहली और संगीन गफलत को बेनकाब कर दिया, जबकि एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के स्टारशिप रॉकेट की 9वीं आजमाइशी परवाज भी नाकाम हो गई। स्टारशिप रॉकेट ने परवाज के 30 मिनट बाद ही खला में अपना कंट्रोल खो दिया और तयशुदा वक्त से पहले ही रॉकेट फजा में दाखिल हुआ, जिसके बाद रॉकेट बहरा हिंद में फट गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अनोखी पेशकश कर दी। कहा, अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाए तो वो मिसाइल दिफाई सिस्टम गोल्डन डूम मुफ्त हासिल कर सकता है। अलबत्ता अगर कनाडा खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बरकरार रहा तो इसे दिफाई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए 61 अरब डॉलर अदा करना होंगे। साइंसदानों ने इंडोनेशिया के साहिल के नीचे दफन एक ऐसी दरियाफ्त की है जो मुमकिन तौर पर इंसानों की तारीख को बदल सकती है। साइंसदानों को जावा और मदावरा के जजीरे के दरमियान मौजूद मदावरा स्ट्रीट में साहिल की रेत में दफन 1,40,000 बरस पुरानी कदीम इंसान की खोपड़ी दरियाफ्त हुई है। भारत में मुनक्किदा मिस वर्ल्ड के मुकाबले में शिरकत करने वाली बरतानवी हसीना मिला मैगी ने भारतीय मुआशरे में पेश आए शर्मनाक सलूक पर खामोशी तोड़ दी। 24 साला मिला मैगी का कहना था कि मेरे साथ तवाइफों जैसा सलूक किया गया। मुझे अमीर और उधेड़ उम्र मर्दों के साथ ज़बरदस्ती पूरा दिन गुजारने पर मजबूर किया गया, जैसे मैं उनकी तफरी का सामान हूँ। PSL में मारूफ गैर मुल्की स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ईरान होलैंड पर पाकिस्तानी रंग चढ़ गया। ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी पाकिस्तान की दीवानी हो गई। इंस्टाग्राम पर चाय के स्टॉल पर बगैर पानी डाले दूध पत्ती चाय को बनाने और सीखने की वीडियो शेयर की, जिसने मद्दाहों के दिल में घर कर लिया। चाय बनने के बाद कस्टमर्स को पेश करती हुई नजर आई। कोलंबिया से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा गीत निगार शकीरा कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में दौरान परफॉर्मेंस स्टेज पर स्लिप होकर गिर पड़ी। ताहम वो मुस्कुराते हुए फौरी तौर पर खड़ी हो गई, जिस पर उनके पुरस्तारों ने सोशल मीडिया पर उनके इस इक़दाम को सराहा, जबकि हॉल में भी नाज़रीन ने ज़ोरदार तालियां बजाकर उनकी प्रोफेशनलिज्म को सराहा। और शांगला में बेटों ने उम्र रसीदा बाप की दूसरी शादी की ख्वाहिश पूरी कर दी। सैफुल्लाह की पहली बीवी का इंतकाल 7 साल कबल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसके बाद उनके चारों बेटों ने मिलकर बाप की शादी करवाने का फैसला किया।